subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. Today we will talk about hearing and equilibrium in water. As you know कि bony fishes जो हैं उनमें रिसेप्टर्स हैं इक्विलिब्रियम के लिए, बैलेंस के लिए, और इसके साथ उनमें इनर ईयर भी मौजूद है विच इज़ द सेंस ऑर्गन फॉर हेयरिंग. और ये जो सारे फंक्शंस हैं ये बिल्कुल उसी तरह से परफॉर्म करते हैं एज़ इन केस ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं जो रोटेशनल मूवमेंट्स को डिटेक्ट करती हैं, या फिर दूसरी सूरत में जैसे कल आपको मैंने एक एम्फीबियन ईयर में दिखाया था कि एक सेंसरी पैच है विच विल हेल्प देम विद इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस, और क्योंकि वो इनकी डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल. तो कुछ फिशेज़ ऐसी होती हैं जिनमें मिडल और आउटर ईयर मौजूद नहीं होता एज इट इज़ फाउंड इन अदर वर्टिब्रेट्स, बट vibrations pass from water through the bones of skull to the inner ear, as we talked about neurons and snakes in our previous lecture, that they can sense substrate borne vibrations which are transmitted through their jaw bones or their skull bones. Same is the case with these fishes, and as their substratum is water, not earth, so these vibrations pass from water through skull bones directly into the inner ear, so they don't need an outer and middle ear. So a few fishes have chains of body muscles, bony ossicles. These ossicles are specific and their name is Weberian ossicles that pass between the swim bladder and the inner ear. एज़ यू नो कि जो बोनी फिशेज़ हैं उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो उनकी बैलेंसिंग में और उनकी बायोन्सी को या वाटर के अंदर जो स्विम करने की एबिलिटी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्विम ब्लैडर. तो स्विम ब्लैडर और इनर ईयर के दरमियान उनको जोड़ने के लिए एक चेन है जो छोटी छोटी बोन्स से बनी हुई है, एंड दीज बोनी ऑजिकल्स आर कॉल्ड वेबेरियन ऑजिकल्स. जब वाइब्रेशंस एक फ़िश की बॉडी के साथ स्ट्राइक करती हैं, when a vibration strikes with the body of a fish, this vibration is amplified by the swim bladder, or it is transmitted to the swim bladder, and then with the help of these ossicles, this chain of ossicles, it is sent to the skull. तो skull के अंदर जो inner ear मौजूद है वो फिर इसको सेंस करता है. तो water के अंदर hearing और equilibrium इस तरीके से मेंटेन किया जाता है. Then the skin sensors of damaging stimuli. As I talked in previous lecture that there are specific receptors which are called pain receptors, and they are bare sensory nerve endings. They are present on the whole surface of the body of a mammal except for the brain and intestine. ये जो brain है और जो intestine है ये वो दो organs हैं जिनमें pain receptors नहीं होते in case of mammals, बाकी उनकी पूरी body के तमाम organs में present हैं. और ये बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स होती हैं. ये नर्व एंडिंग्स नोसिसेप्टर्स भी कहलाती हैं. नोसी इज़ टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नोसेयर विच मीन्स टू इंजर, यानी जब कोई इंजरी होगी तो ये रिसेप्टर काम करेगा. स्वीयर हीट, स्वीयर कोल्ड, इरिटेटिंग केमिकल्स एंड स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल स्टिम्यूलाई. फॉर एग्जाम्पल पेनिट्रेशन इनसाइड योर बॉडी, जैसे आपको इंजेक्शन लगे, कोई भी चीज़ पेनिट्रेट करे आपकी बॉडी के अंदर, दैट विल कॉज नोसिसेप्टर्स टू गेट स्टिम्यूलेटेड, एंड दैट response is transmitted to the brain in the form of a nerve impulse, and the brain interprets it as a pain or itching. But the detailed structure and physiology of pain receptors is still unknown. Here you can see the structure of the inner ear of a fish. Here the semicircular canals are present, and this one is inner ear. So the vibrations are directly transmitted through the skull to the inner ear. Here you can see, and these are the Weberian ossicles. These are the Weberian ossicles, and they transmit the vibration which is sensed by the swim bladder, or which is strike to the swim bladder, is transmitted through these Weberian ossicles to the inner ear directly. Then the skin sensors of heat and cold. Heat and cold sensors are sensors of temperature. These are called thermoreceptors. They are also bare sensory nerve endings, and they are present on the skin
They may be present on the epidermis, which is the upper layer of the skin, or they may be present in the dermis, which is the second layer of the skin. Mammals have a distinctly different distribution of areas sensitive to either cold or warm. यानी mammals की जो skin है उसके ऊपर डिफ्रेंसिएशन मौजूद है कि कौन सा एरिया कोल्ड को सेंस करेगा और कौन सा वार्मथ को सेंस करेगा. इन एरियाज़ को हम कोल्ड एंड वार्म स्पॉट्स कहते हैं. A spot, what is a spot? It refers to a small area of the skin that when stimulated creates a temperature sensation of warmth or cold. If it creates the sensation of warmth, it is called a warm spot, and if it creates the sensation of cold, it would be called a cold spot. Cold receptors in the skin respond to the temperature which are below skin temperature. आपकी skin का एक temperature है. अगर उससे कम टेम्परेचर को एक एरिया रिस्पॉन्ड कर रहा है और आपको ठंड लगवा रहा है, दैट इज़ रिलेटेड टू कोल्ड. इट इज़ कॉल्ड अ कोल्ड स्पॉट. बट इफ़ द टेम्परेचर above your skin temperature is responded by a specific area, then that is called a heat spot. When materials come into contact with your body, come into contact with your skin, they need not be warm or cold to produce temperature sensation. कोई भी चीज़ आपकी बॉडी को टच करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो गर्म है या ठंडी है तो तभी आपकी स्किन उसको टेम्परेचर सेंसेशन से जज करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपनी स्किन पे एक मेटल रखते हैं तो वो आपको ठंडी लगती है. लोहा रख लें, स्टील रख लें, कोई भी मेटल आप अपनी बॉडी से टच करते हैं, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कोल्डनेस. उसकी वजह ये है कि वो एक हीट को एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल है, वो आपकी बॉडी से कुछ हीट को एब्जॉर्ब करता है. लेकिन अगर आप उसके मुकाबले में वुड को अपनी स्किन पर रखें, इट विल एब्जॉर्ब लेस हीट, तो आपको मेटल के मुकाबले में ये बिल्कुल वार्मथ की फीलिंग देगी. इट विल नॉट क्रिएट एनी सेंसेशन ऑफ कूल और कोल्डनेस. तो ये जो वुड है, वुड एक एब्जॉर्बर नहीं है, वुड एक इंसुलेटर है, वो आपकी स्किन के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. तो जो चेंजेस इन टेम्परेचर हैं जो आपके एनवायरनमेंट में हो रही होती हैं, किसी भी एनिमल के एनवायरनमेंट में हो रही होती हैं, उन चेंजेस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी हर एनिमल के अंदर मौजूद है. इट बिकेम वेल डेवलप्ड इन अ नंबर ऑफ एनिमल्स. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टॉक अबाउट स्नेक्स, तो रेटल स्नेक और पिट वाइपर, ये दोनों वो स्नेक्स हैं, ये दोनों स्नेक्स की स्पीशीज़ हैं और ये बहुत जहरीले सांपों में से हैं. तो ये जो रेटल स्नेक और पिट वाइपर्स होते हैं, दे हैव हीट सेंसिटिव ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड पिट ऑर्गन्स, क्योंकि वो स्किन के ऊपर नहीं पड़े हुए बल्कि स्किन के अंदर एक सुराख है विच इज़ कॉल्ड अ पिट और अ चैनल. तो उस पिट के अंदर ये पड़े हुए. और ये पिट्स कहाँ होती हैं? उनके फेस पर आई और नॉस्ट्रल के साथ, यानी स्किन की फेस की दोनों साइड्स पर ये मौजूद होती हैं. ये जो डिप्रेशंस हैं विच आर कॉल्ड पिट्स, दे आर लाइंड विद सेंसरी एपिथेलियम, जिसमें ख़ास रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं. और ये रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? इंफ्रारेड थर्मल रेगुलेशन के ज़रिए. तो उससे इंफ्रारेड से फ़ायदा ये होता है कि एक स्नेक की सराउंडिंग में जब कोई ऐसा ऑर्गेनिज़म आता है जिसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट से डिफरेंट होता है, तो वो फ़ौरन उस पर अटैम्प्ट करता है, उससे अपने वार्म ब्लडेड प्रे को डिटेक्ट करने में उसको मदद मिलती है. तो यहाँ पर आप फिगर 24.25 में इस पिट वाइपर या रेटल स्नेक को देख सकते हैं. ये एक रेटल स्नेक है, यहाँ इसकी आँख के साथ ये एक पिट है, एंड हेयर दिस इज़ कॉल्ड द पिट ऑर्गन, और इसके अंदर एक सेंसरी एपिथेलियम मौजूद है जो उसको टेम्परेचर को जज करने में हेल्प करेगी. Now the skin sensors of mechanical stimuli. Many animals rely on touch. Touch is called tactile stimuli. With the help of this sensation, they can determine any information about their environment, or they can obtain their information from the environment. Mechanical sensory receptors are present in vertebrate skin, and they can detect stimuli that the brain interprets as light touch, टच प्रेशर एंड वाइब्रेशन. और अगर आप अपने बारे में सोचें तो आप इन तीनों सेंसेशंस को अलग से परसीव कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ा, दैट इज़ अ लाइट टच. मोबाइल वाइब्रेट हुआ, आपकी उंगलियों ने उसको फील किया, दैट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन. और टच प्रेशर, किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपको धक्का दिया, आपको पुश किया, आप इसको फील कर सकते हैं. लाइट टच को कौन परसीव करता है? जब स्किन को सिर्फ टच किया जाता है बट नॉट स्ट्रांगली डिफॉर्म्ड.
तो जो लाइट टच के रिसेप्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स एंड मीसनर्स कार्पसल्स, ये आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टेक्टाइल कार्पसल्स। ये बेयर सेंसरी नर्व एंडिंग्स जो होती हैं, ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेप्टर्स हैं इन द वर्टिब्रेट बॉडी, और ये पेन और थर्मल स्टिम्युलाई में इन्वॉल्व हैं एज वेल एज लाइट टच। देन द सेकेंड वन आर द बल्ब्स ऑफ क्रॉस, ये भी मैकेनो रिसेप्टर्स हैं। ये एपिडर्मस की बजाय डर्मस में होते हैं इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये पोजीशन चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं या उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। बाकी रिसेप्टर्स जो टच के हैं वो पिसिनियन कार्पसल्स हैं, ये भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा, एंड द ऑर्गन्स ऑफ रेफिनाई। तो ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो उनके पास अडेप्टेड सेंसरी हेयर्स होते हैं। अच्छा, पहले एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पिसिनियन कार्पसल्स हैं, दे आर डीप इनसाइड योर स्किन, तो ये डेप्थ की सेंसेशन आपको देते हैं, डीप टच की सेंसेशन आपको देंगे। जो मैमल्स हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हेयर के ऊपर भी लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल विब्रिसी आर द स्पेसिफिक हेयर। विब्रिसी इसका प्लूरल है और सिंगुलर विब्रिसा है। ये उनके कोनियों पर मुंह के साथ साथ आईब्रोज के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक बिल्ली को अगर जहन में लाएं तो बिल्ली के मुंह के दोनों तरफ बड़े बड़े बाल होते हैं। दीज आर कॉल्ड द कैट विस्कर्स। सेम आर द केस विद रैबिट। तो ये जो हर विब्रिसी है उसकी बेस पर एक ब्लड साइनस लगा होता है जिसके साथ नर्व्स होती हैं जो इसको बॉर्डर करती हैं, और ये बहुत सी टाइप्स के इम्पल्सेस को कैरी करती हैं मैकेनो रिसेप्टर से टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन, और ब्रेन फिर इसको इंटरप्रेट करता है। इसीलिए वो ये एनिमल्स जो हैं बहुत दूर से अपने प्रीडेटर के आने को सेंस कर सकते हैं। देन इकोलोकेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस, and it is used by bats, shrews and cave dwelling birds, for example oil bird, cave swiftlet. It may be used by whales and dolphins to determine the distance and depths, and this form of echolocation is also called sonar or biosonar. इसमें होता क्या है कि ये जो भी एनिमल है, चाहे वो वेल है, डॉल्फिन है, बैट है या श्रीव है, ये अपने मुंह से एक बहुत ऊंची आवाज़, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालेगा और फिर डिटरमिन करेगा कि ये आवाज़ कितनी दूर तक जाती है, किस चीज़ से टकरा कर वापस आती है। क्योंकि आपको पता है कि आवाज़ की लहरें जब हवा में सफ़र करती हैं तो वो जिस चीज़ से टकराएंगी टकरा के वापस आएंगी, तो ये उनके वापस आने का इंतज़ार करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बैट्स जो होती हैं वो क्लिक्स अपने मुंह से निकालती हैं, क्लिक जैसी आवाज़ें जो 2 से 3 मिली सेकेंड्स के लिए होती हैं और कई दफ़ा रिपीट की जाती हैं, यानी वो बार बार इन आवाज़ों को निकालती हैं। जब वो वापस आती हैं आवाज़ें तो वो इको क्रिएट करेंगी। अगर उस आवाज़ के रास्ते में कोई इंसेक्ट था या कोई छोटा सा परवाना था तो इससे बैट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उसके पास एक प्रे को पकड़ने के लिए कितना फासला है, कितने फासले पे उसका प्रे बैठा है। वहाँ से वो उसको लेगी और वहाँ से जाके उसको पकड़ेगी उस फासले की इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। ओवरऑल जो 3 डायमेंशनल इमेजिंग है वो अचीव की जाती है इस ऑडिटरी सोनार सिस्टम की मदद से, और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। जैसा कि एक रडार यूज़ करता है, बिल्कुल उसी तरह से ये बैट्स, श्रीव्स भी यूज़ करते हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो अच्छी तरह देख नहीं सकते या नाइट व्यूअर्स होते हैं, रात के वक्त बाहर निकलते हैं तो इनको देखने में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए ये अपनी ऑडिशन की सेंस को, आवाज़ की प्रोडक्शन को यूज़ करते हैं अपनी डायरेक्शन का पता चलाने के लिए। देन द सेंस ऑफ स्मेल को ऑल्फेक्शन कहते हैं। स्मेल से रिलेटेड चीज़ों को ऑल्फैक्ट्री कहा जाता है। इसके स्टिम्युलाई को स्मेल के स्टिम्युलाई को ऑल्फैक्ट्री स्टिम्युलाई कहा जाता है। ऑल्फेक्शन ओलेयर से निकला है, विच इज़ ऑल्सो अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू स्मेल, एंड फेसेयर मीन टू मेक अ स्मेल। ये ऑल्फैक्ट्री न्यूरॉन्स की वजह से होता है, विच आर द रिसेप्टर सेल्स इन द रूफ ऑफ द वर्टिब्रेट नेजल कैविटी। वर्टिब्रेट्स की नाक में ऐसे रिसेप्टर सेल्स हैं उसकी रूफ पर जो इनको सूंघने में मदद देते हैं। ये स्पेशलाइज्ड एंडिंग्स हैं फाइबर्स की, जो कि ऑल्फैक्ट्री नर्व, जो कि पहली क्रेनियल नर्व है। आपने जब क्रेनियल नर्व्स का टेबल पढ़ा तो उसमें सबसे पहली ऑल्फैक्ट्री नर्व है। ये उसके सपोर्टिंग एपिथेलियल सेल्स पर मौजूद होती हैं और उसको मैसेज भेजती हैं, वो मैसेज लेकर ब्रेन के पास जाती है। ये बहुत डेंसली पैक्ड नर्व सेल्स होते हैं या नर्व एंडिंग्स होती हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक डॉग के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स का पर स्क्वायर सेंटीमीटर में काउंट लें तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर जो उसकी नेज़ल एपिथीलियम है उसमें 40 मिलियन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं, इसलिए जो डॉग्स की एबिलिटी है स्मेल करने की वो बहुत ज़्यादा होती है। हर ऑल्फैक्टरी सेल के एंड पर एक टफ सीलिया होता है जिसमें रिसेप्टर साइट्स होते हैं फॉर वेरियस केमिकल्स। वो उन केमिकल्स को परसीव करते हैं जो इनके माउथ के ज़रिए एंटर होते हैं, जो ये खाते हैं, या फिर जो हवा के ज़रिए इनकी नाक में आते हैं। ये हमें एक और चीज़ भी पता है कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो रेगुलरली रिप्लेस होते रहते हैं, यानी पुराने ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए निकल आते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, वो ये कि ह्यूमन में या मेमेलियन में एक रूल है दैट न्यूरॉन्स है लास्ट अ लाइफ टाइम एंड नॉट रिप्लेस्ड। हमें ये पता है कि न्यूरॉन्स एक ही दफ़ा पैदा होते हैं और वो रिप्लेस नहीं किए जाते, वो मुरम्मत हो सकते हैं लेकिन वो रीजनरेट नहीं हो सकते, रिपेयर किए जा सकते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स हैं लेकिन इसके बावजूद वो रिप्लेस किए जा सकते हैं। तो एक ऑडोरेंट या कोई भी जो स्मेल प्रोड्यूस करने वाली चीज़ है उसको हम ऑडोरेंट कहते हैं, ऑडोर स्मेल को कहा जाता है। तो जब वो डिटेक्ट करनी हो तो उसके लिए क्या होता है कि उस सब्सटेंस से जो निकलने वाले मॉलिक्यूल हैं वो हवा में आएंगे और हवा से वो नाक के उस हिस्से में दाखिल हों जहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम मौजूद है। जब एक दफ़ा वो वहाँ एंटर हो जाते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ, जो वाटरी म्यूकस है नाक के अंदर, पानी जैसी एक चीज़ है, उसके साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड देन दे बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स विच आर ऑडोरेंट साइट्स और ऑडोरेंट रिसेप्टर्स। तो इस म्यूकस के अंदर न सिर्फ वाटर होता है बल्कि कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो इन ऑडोरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको रिसेप्टर के पास ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं और उनकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट करते हैं। जब तक एक ऑडोरेंट मॉलिक्यूल बाइंड नहीं करता अपने रेलेवेंट रिसेप्टर के साथ तब तक उसको सेंस नहीं किया जा सकता। हालांकि नाक के अंदर कई हज़ार रिसेप्टर सेल्स होते हैं बट दे कंटेन ओनली 1 और फ्यू ऑफ द 1000 और सो डिफरेंट नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। तो यहाँ आप इस फिगर को देखें, यहाँ आपको ऑल्फैक्टरी नर्व भी नज़र आ रही है, ये आप ऑल्फैक्टरी नर्व को देख रहे हैं, ये ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स हैं जो कि इस सरफेस के अंदर ये पड़े हुए हैं, ये रिसेप्टर सेल्स का काम करते हैं, ये इसकी नेज़ल एपिथीलियम है जिसके अंदर ये मौजूद हैं। तो बहुत सी टाइप्स के कई 100 या कई हज़ार रिसेप्टर टाइप्स हो सकती हैं। हर टाइप एक स्पेसिफिक केमिकल को या एक ख़ास किस्म के ऑडोरेंट मॉलिक्यूल को रिस्पॉन्ड करती है। हर ऑडोरेंट की एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम ऑडोरेंट्स की केमिकल ग्रुपिंग कर सकते हैं जो इसे दूसरे ऑडोरेंट्स से अलग करती है। हर ग्रुप एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक ख़ास हिस्से को या एक ख़ास रिसेप्टर टाइप को एक्टिवेट करता है या स्टिम्युलेट करता है। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जब ये इंटरेक्ट करता है उसके साथ तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी अल्टर हो जाती है, चेंज हो जाती है और उससे एक जनरेटर पोटेंशियल क्रिएट होता है। ज़्यादातर जो फिशेस होती हैं उनमें बाहर की तरफ नाक की ओपनिंग्स होती हैं विच आर कॉल्ड द एक्सटर्नल नेयर्स। ये उनके मुंह के थोड़ा सा ऊपर मौजूद हैं। और स्नाउट किसको कहते हैं? ये जैसे आप फ़िश के फेस की, मतलब फ़िश की शेप देखें आगे से मुंह की, और वो आगे की तरफ एक लंबा सा बड़ा हुआ फेस है, तो इसको स्नाउट कहा जाता है। तो ये जो इसकी ओपनिंग्स हैं दे लीड टू द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और रीसेंट रिसर्च से हमें पता चला कि कुछ फ़िशेस बहुत ज़्यादा अपनी स्मेल की सेंस पर रिलाई करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक सैमन या लैम्प्रे, एज यू नो दैट दीज आर माइग्रेटरी फिशेस and they migrate between fresh water streams and sea water, and when it returns to spawn in the same stream in which they hatched years earlier, बहुत साल पहले वो जिस नदी में पैदा हुई थी और फिर समंदर में चली गई थी, जब वो हैच करने का टाइम आता है तो वो उसी नदी में वापस आती हैं। तो ये माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है जब तक कि वो कई 100 मील का फासला किसी गाइडलाइन के बग़ैर तय नहीं कर सकती। तो गाइडलाइन कहाँ से मिलती है उनको? वो जो उस पानी की एक कैरेक्टरिस्टिक अडोर होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ऑफ दैट स्पॉनिंग स्ट्रीम, उसको वो याद रखती हैं इतने सालों के बाद भी। ऑल्फैक्शन एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेंस है फॉर मैनी एम्फीबियंस।
वो उसको मेट रिकग्निशन में और जो उनके इर्द गिर्द फूड मौजूद है और जो नॉक्शियस या डिस्टर्बिंग केमिकल्स मौजूद हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करती है। जो ऑल्फैक्टरी सेंसेस होती हैं ये बेटर डेवलप्ड है इन रेप्टाइल्स एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस, और उनके पास न सिर्फ कि ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम ज़्यादा है बल्कि बहुत से ऐसे रेप्टाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑल अदर्स एक्सेप्ट क्रोकोडिलियंस, क्रोकोडाइल्स के अलावा जो बाकी सारे हैं उनमें एक ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस होते हैं जो मुंह के अंदर ओपन होते हैं, क्योंकि ये नेज़ल बोन और वोमर जो बोन है, एक फेशियल बोन्स में एक वोमर होती है एक नेज़ल होती है, उन दोनों के दरमियान में मौजूद हैं, इसलिए हम इनको वोमेरो नेज़ल ऑर्गन्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड जैकबसन्स ऑर्गन्स। जिसने इनको डिस्कवर किया था उसका नाम जैकबसन्स था, उसके नाम पे इसका नाम जैकबसन्स ऑर्गन रखा गया। ये लिजर्ड्स और स्नेक्स में बेस्ट डेवलप्ड हैं जैकबसन्स ऑर्गन्स। तो ये प्रोट्रूजेबल है, यानी बाहर निकल सकते हैं फिर अंदर जा सकते हैं। इनके पास ऐसी मतलब प्रोट्रूजेबल टंग्स हैं स्नेक के पास, और स्नेक की ज़बान कभी आपने देखी होगी वो फोक्ड होती है। फोक्ड का मतलब ये है, ये यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, आप ये देखें कि एक ऐसी टंग जिसके आगे से 2 शाखें बनी होती हैं, ये फोक टंग होती है। तो स्नेक्स और लिजर्ड के पास फोक टंग होती है। इसके ऊपर एक्सेसरी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स लगे होते हैं जो कि इनको एयरबॉर्न केमिकल्स को सैंपल करने में या उनको सॉर्ट आउट करने में हेल्प करते हैं। एक स्नेक की जो टंग है वो जब बाहर निकलती है और दोबारा अंदर जाती है, जैकबसन ऑर्गन को टच करती है, तो उसके साथ जो भी केमिकल या मॉलिक्यूल गया वो भी उसको टच करता है, वो उस तक पहुंच जाता है। तो फिर वो जैकबसन ऑर्गन इस मॉलिक्यूल को परसीव करेगा कि ये क्या है। टर्टल और टटारा में भी जैकबसन ऑर्गन होते हैं, लेकिन वो इसको हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स को सेंस करने के लिए यूज़ नहीं, इसको सेंस नहीं कर सकते, बल्कि वो उनके मुंह के अंदर जो उनका प्रे है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको टेस्ट करने के लिए जैकबसन्स ऑर्गन को यूज़ करते हैं। देन ऑल्फैक्शन बर्ड्स के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। इट प्लेज अ माइनर रोल इन द लाइव्स ऑफ कॉमन बर्ड्स, बट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द बर्ड्स ऑफ प्रे। ख़ास तौर पे वो बर्ड्स जो कि डाइंग प्रे, डेड डाइंग प्रे को खाते हैं। तो आम तौर पे बर्ड्स में आपने देखा कि उनके 2 सुराख होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं, और वो उनकी बीक की बेस पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम इनमें पुअरली डेवलप्ड है। अब जो वल्चर्स हैं, वल्चर्स एक एक्सेप्शन है, इसलिए कि ये डेड और डाइंग प्रे को अपनी स्मेल के ज़रिए, वो जो उसकी स्मेल प्रोड्यूस हो रही होती है उसको जज करके उस प्रे को लोकेट करेंगे कि प्रे कहाँ पड़ा हुआ है, इसलिए इनकी नाक के अंदर जो एपिथीलियम है वो बहुत वेल डेवलप्ड होती है। तो मैमल्स जो हैं दे कैन परसीव ऑल्फैक्टरी स्टिम्युलाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, एंड दे यूज़ द स्टिम्युलस टू लोकेट फूड। पहली बात तो ये कि वो उससे अपनी फूड लोकेट करते हैं, अपनी स्पीशी के दूसरे मेंबर्स को रिकग्नाइज करते हैं, अपने मेट्स को लोकेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपने प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए भी अपनी इस सेंस को यूज़ करते हैं। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह गए हैं, टेस्ट एंड विजन, तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।